Today we are going to drive the relation for a real gas when it undergoes an adiabatic process, and for that the relation will be the product of pressure and volume for any state in the system is a constant. For that, before derivation, we are going to discuss few of the basic concepts which will be helping us during the derivation. And for that, for our first term, we must be familiar with the adiabatic process. We have already discussed adiabatic process in our previous classes. What is adiabatic process? In order to revise that, let's assume we got a cylinder with a movable piston, and the cylinder is filled with an ideal gas. The gas may be ideal or the gas may be real. So we have filled the cylinder with gas, and the walls of the container are such walls of the cylinder are such that no heat can enter or no heat can leave the system during the process. So such a process in which no heat can enter or no heat can leave the system is known as adiabatic process. Now, moving on towards the molar specific heat at constant volume. In order to understand this concept, let's assume that we got a cylinder with a movable piston and we have filled 1 mole of gas in that cylinder, keeping the volume of the cylinder constant. Now, if we want to raise the temperature of this gas to 1 Kelvin, in order to do that, we have to increase the amount of heat inside the cylinder. So the amount of heat needed to rise the temperature of the gas by 1 Kelvin is known as molar specific heat, in case when we have kept the volume of the gas constant. Now, before moving on towards the next concept, we are going to calculate the change in internal energy for this process in which we have kept the volume of the gas constant. So let's say we have added a heat to the system, an amount of heat, and that amount of heat is represented by dq. V is representing that we are working at constant volume. The volume of the gas is not changing, and we know that there are n number of moles in the gas. So change in so the amount of heat added to the system at constant volume can be related with the help with the number of moles as the following relation: dqv is equal to cvn dt, where cv is the molar specific heat at constant volume, dt is the change in temperature, and n is the number of moles. The amount of work done on a gas is when the gas is heated at constant volume. ये हमारे पास बराबर, एज वी नो दैट हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो चेंज नहीं हो रहा, और अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई वी एफ़ और वी आई की वैल्यूज़ नहीं है, एंड वी एफ़ की वैल्यू जो है वो वी आई की वैल्यू के बराबर है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हमारे पास वी एफ़ की वैल्यू वी आई की वैल्यू के बराबर होती है तो हमारे पास वर्क डन जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, अगर अब यहाँ पर हम लोग अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, एज वी वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या कहती है कि डी ई इंटरनल इज़ इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू जो है हमारे पास वो बराबर है ज़ीरो के इन दिस स्पेसिफिक केस. तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बराबर आ जाएगी डी क्यू के, और डी क्यू की वैल्यू अभी हमने ऊपर इक्वेशन में लिखी है कि हमारे पास डी क्यू की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ इक्वल टू सी वी एन डी टी. So we have came out with the first equation for our derivation,
और ये इक्वेशन क्या कहती है, हमें इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बता रही है व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट. Now, moving on towards the next concept, and that is molar specific heat at constant pressure. Molar specific heat at constant pressure is quite similar to the molar specific heat at constant volume, but just there is one change, and the change is, for the previous case we have kept the volume constant. For this case we will be keeping our pressure constant. अब होगा क्या, हम एक गैस लेते हैं और गैस बेसिकली एक आइडियल गैस ले लेते हैं, और आइडियल गैस का सिंगल एक मोल जो है वो हम एक अदद सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं, और उस सिलेंडर का हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं बाय 1 केल्विन. तो हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली अगर कहीं पर भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो वी हैव टू प्रोवाइड हीट. तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी गैस को रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू राइज इट्स टेम्परेचर from to 1 Kelvin is known as molar specific heat at constant pressure. Now let's say कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी हमने हीट को इंक्रीज़ किया, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम स्लाइड में मिस्टेक है, दैट हीट बी एडेड टू दिस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा गया है, यहाँ पर वो कांस्टेंट प्रेशर आना चाहिए था. और कांस्टेंट प्रेशर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिकली बात है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑन एन आइडियल गैस, दैट विल बी इक्वल टू n एज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट्स से कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी फॉर दिस the change in heat जो हमारे पास required थी to rise the temperature of the gas by 1 Kelvin, that is represented by dQp, because we are considering the case of constant pressure, and that is equal to Cp n dt. अच्छा जी, moving on towards the derivation for the internal energy, change in internal energy when we are keeping the pressure of the gas constant. For that we are going to apply first law of thermodynamics, and first law of thermodynamics says स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, और उसके बाद हम कहते हैं कि लेट्स से हमारे पास जो सिस्टम है उसका हम प्रेशर चेंज नहीं करना चाहते. अगर हम प्रेशर चेंज नहीं करना चाहते तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर द केस कि प्रीवियसली इन द प्रीवियस लेक्चर व्हेन वी वर ड्राइविंग वर्क डन्स फॉर द आइडियल गैस, और उसमें हमने सर्टेन प्रोसेसेस के लिए वर्क डन्स कैलकुलेट किए थे, एंड जिसमें हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया था. उसके अलावा हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया था, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया था, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया था. तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था तो वी हैव नोटिस्ड अच्छा जी, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, सो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस वाज द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट. सो यहाँ पर इन दिस स्पेसिफिक केस जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिकली हमारे पास एक अदद आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो प्रेशर है, वर्क डन है, दैट इज़ इक्वल टू -P/V/F-Vi, और इस केस के अंदर हमारे पास जो है प्रेशर कांस्टेंट रखना है अगर हमें, तो बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हम लोगों ने जब इनिशियली काम स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कहा था कि we can keep the pressure of the gas constant when we are not changing the temperature changing the amount of heat added to the system.
तो उस सूरत में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो हमारे पास जो चेंज इन हीट की वैल्यू आएगी यहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगी। और अगर चेंज इन हीट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू द वर्क डन। तो हमारे पास क्या आ गया, कैलकुलेशन आ गई फॉर द इंटरनल एनर्जी व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, ये प्रेशर ऑफ द गैस इस कैप, ये जो हमारे पास डेरिवेशन इक्वेशन आई है इंटरनल एनर्जी की, और प्रीवियसली हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की थी इंटरनल एनर्जी की फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गॉट dW इज़ इक्वल टू CVNDT। और dW जो है वो हमारे पास, अगर आपको याद हो तो वो बराबर होता है PdV माइनस PdV के। एंड अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PdV इज़ इक्वल टू माइनस CVNDT। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। नाउ हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज़ इक्वल टू nRT। नाउ हम इस इक्वेशन में PV की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब PV की जगह उसकी वैल्यू किस तरह हम पुट कर सकते हैं, हमने दो केसेस पढ़े हैं PV के लिए। एक जिसमें हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने उसके लिए लिख दिया PdV, और एक वो केस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं VdP। नाउ इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और PdV की वैल्यू को एक साइड पर निकाल लेते हैं। और जब PdV की वैल्यू को एक साइड पर निकालेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PdV इज इक्वल टू माइनस VdP प्लस nRDT। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 जो प्रीवियसली हमने निकाली है एंड इक्वेशन नंबर 4, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है माइनस CVNDT। अब ये माइनस CVNDT इज़ इक्वल टू P माइनस VdP प्लस nRT। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, हम अपनी PdV वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे और दूसरी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वेशन पर आ जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया हुआ, हमने सिंपल दोनों टर्म्स ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं उसके अंदर कुछ वैल्यूज सेम आ रही हैं, लाइक n एंड dt। तो हम n और dt को कांस्टेंट लिख सकते हैं, कॉमन लिख सकते हैं, और ये हमने लास्ट स्टेप इस इक्वेशन के अंदर हमने किया भी है। नाउ it is known that it is derived from some other relations that the subtraction of Cp and Cv is equal to ideal gas constant, so we are replacing, so हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन को, यहाँ पर इस टर्म को बेसिकली इस टर्म Cv प्लस R को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस Cp के साथ। और जब हम इसको Cp के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ऊपर वाली, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और इक्वेशन की फॉर्म जो है वो हमारे पास चेंज होकर आ जाएगी VdP इज़ इक्वल टू CPNTP। नाउ हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी, और इक्वेशन नंबर 3 में क्या था, PdV इज़ इक्वल टू माइनस CVNDT। इस इक्वेशन नंबर 3 को, और ये जो अभी हमने इक्वेशन ड्राइव की है इक्वेशन नंबर 5, हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 को एक दूसरे के साथ डिवाइड करने जा रहे हैं। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस की इस साइड के ऊपर हमारे पास CPNDT लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास NDT दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो ये एक दूसरे के साथ बैलेंस आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो खाली क्या आएगी, VdP ओवर PdV इज़ इक्वल टू माइनस CP ओवर CV। और ये जो CP ओवर CV है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं गैमा के साथ, तो आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के साथ ही साथ हमने इस स्टेप के अंदर क्या किया है, हमने अपनी प्रेशर वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और वॉल्यूम वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए हैं। तो वॉल्यूम वाली टर्म्स को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी dP ओवर P इज़ इक्वल टू माइनस गैमा V dV ओवर V। अच्छा जी,
अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर ना तो अपने पास इंटेग्रल्स और डिफरेंशियल्स नहीं चाहिए। तो इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली क्या लगेंगी, लिमिट्स लगेंगी। लिमिट्स एज द सिस्टम इज़ विनिंग। तो हमारे पास इनिशियल स्टेट के लिए लेट्स सपोज कि हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यूज़ थी वो पी आई थी एंड वॉल्यूम की वैल्यू वी आई थी, और फॉर द फाइनल स्टेट हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू थी वो पी एफ थी और वॉल्यूम की वैल्यू जो थी वो वी एफ थी। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द इक्वेशन विद द सूटेबल पैरामीटर्स हमारे पास इक्वेशन इंटीग्रेट होगी। और इंटीग्रेशन में बेसिकली यहाँ पर हम अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो हमारे पास 1/p को हमने इंटीग्रेट करना है, और 1/p की इंटीग्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, वो हमारे पास log of p आती है, और log of p के साथ बेसिक हमारे पास क्या आ जाएंगी, उसकी लिमिट्स आ जाएंगी। सिमिलरली हमारे पास 1/v के लिए जो इंटीग्रेशन आएगी वो log of v आएगी, और इसके साथ हम लोगों के पास लिमिट्स आ जाएंगी। अब हम लिमिट की वैल्यू अगर पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो हमारी इक्वेशन चेंज होकर इस तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट हुई हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं लॉग वाली और दोनों वैल्यूज जो एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वी कैन राइट इट ऑन द सेम लॉग बाय डिवाइडिंग बोथ द वैल्यूज़ जो कि सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और ये थर्ड स्टेप के अंदर हमने यही किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि अगर एक प्रॉपर्टी लॉग की हमने पढ़ी हुई है कि अगर लॉग के अंदर वेरिएबल कोई पड़ा है लॉग के साथ और उसके पहले उसकी पावर पड़ी हुई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं n इज़ द पावर, और जो वेरिएबल m है इस वेरिएबल का हम लॉग लेना चाह रहे हैं, तो जो पावर आपके पास पहले पड़ी हुई है वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म कि लॉग के ऊपर जो वेरिएबल है उसकी पावर के साथ हम इसको लिख सकते हैं। सो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये जो गैमा है ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम अपनी पावर के तौर पर लिख सकते हैं। अच्छा जी अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हो गया, हमारी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी रीअरेंज हो गई, और रीअरेंज होने के बाद हमने क्या कर लिया, log ऑफ पी एफ ओवर पी आई इज इक्वल टू log ऑफ वी एफ ओवर वी आई की पार्ट माइनस गैमा। नाउ हमने ये बात पहले से पढ़ी हुई है कि अगर किसी चीज़ की पावर में माइनस लिखा हुआ है, माइनस गैमा है, या कुछ भी ऐसी टर्म लिखी हुई है, सो इफ़ वी वांट टू चेंज द पावर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और यहाँ पर भी हमने यही किया है कि हमारी जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास पावर माइनस गैमा में आ रही थी, और इसको अगर हम प्लस गैमा में लेकर जाना चाह रहे थे तो जो लॉग के अंदर टर्म्स पड़ी थी, फ्रैक्शन पड़ा था, उस फ्रैक्शन को हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन का एंटी लॉग ले लेते हैं, और अगर हम अपनी इक्वेशन का एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास लॉग्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लॉग्स के बाद हमारे पास अंदर टर्म्स सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस प्रेशर और वॉल्यूम वाली रह जाएंगी। अब फर्दर हम इसको क्या करते हैं, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले यहाँ पे जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, इस राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में गैमा जो है वो पार कंबाइंड पार लिखी हुई है, उसको हम सेपरेट पार करके लिख सकते हैं, और सेपरेट पार करके लिखने के बाद हम लोग इसको दोनों को पी वी इज़ इक्वल टू पी आई वी आई गैमा इज़ इक्वल टू पी एफ वी एफ गैमा के बराबर आ जाती है आपकी इक्वेशन। और उसके बाद ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास, चूँकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि थ्रू आउट द सिस्टम कहीं पर भी हम अपनी पी आई वी आई का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लेंगे तो दैट विल बी अ कांस्टेंट। तो वो पी आई वी आई हो या पी एफ वी एफ हो, दोनों हमारे पास सेम आते हैं।